नमस्कार भाई दोस्तों। ये तो आपको पता है कि झूठे सच्चे केस लगा के जो पंजाब के युवाओं को या जो पंजाब की आवाज़ उठाता है उसको जेल के अंदर डालते हैं। लेकिन जेल के अंदर डालने के बाद क्या करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और मुबारक हो पूरे पंजाब को, पूरे इंडिया को मुबारक बोल लेंगे। हालांकि नोबल पुरस्कार में नाम तो पंजाब का है, लेकिन पूरे इंडिया को मुबारक हो। गोदी मीडिया क्या ये दिखाएगा कि अब की बार नोबल पुरस्कार पंजाब के अंदर आ रहा है? कोई छोटा मोटा अवार्ड भी बाहर से मिलता है ना, तो गोदी मीडिया तांडव नृत्य करता है। लेकिन अब की बार पंजाब का नाम है तो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। दोनों बातें आपको बताएंगे और सुनाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लोग जेल में डालने के बाद क्या करते हैं, भाई आया ना, बाहर आया, उसने बताया है, आपकी जमीन निकल जाएगी पैरों के नीचे से, ये कह रहे हैं हम। सबसे पहले एक बात कहना चाहेंगे भाई, अभी सर्दी का समय है और धुंध भी ज़्यादा पड़ रही है। धुंध ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए कहीं पर भी सफ़र करते हो थोड़ा ध्यान से सफ़र करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत ज़्यादा अनमोल है। जब तक धुंध ना उतरे तब तक सफ़र ना करें, गाड़ी ना चलाएं। और किसी ठंड भी आपको कितना नुकसान कर सकती है। कुछ लोग बोलते हैं फ़ोन करके, भाई दीपक फौजी की वो आवाज़ नहीं है। भाई आवाज़ बदली होगी, ठंडी थी, हवा लग गई, गला थोड़ा जाम है, कल से गले पानी भी पी रहे हैं तो वो भी यहाँ पे दर्द होता है। ये सब ठंडी के कारण हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे ठीक, ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए, आपको याद है सुखपाल खैरा जो पंजाब के हक सच की आवाज़ उठा रहा था? मैंने एक चीज़ आपको बहुत पहले बोली थी, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अगर बात अच्छी बोल रहा है, हक सच के लिए लड़ रहा है, तो उसका सहयोग करो। 110 दिन तक उसको जेल के अंदर रखा गया। लेकिन जेल में रखा गया, जेल में क्या क्या किया गया वो आप पहले एक बार सुनना, फिर आपको बताते हैं नोबल पुरस्कार में पंजाब का नाम कैसे है। ਮੇਰੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ 13-0 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਕਾਇਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 110-15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਿਰਫ 2 ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਕ ਦੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਲਿਬਰਟੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਤਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕੂੜ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਉਰਖ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਈ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲੀ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਮੁੱਕ ਜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੜੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਮ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ तक खत्म उसकी सपोर्ट ना, लोगों की सपोर्ट ना मैं। ये है सुखपाल सिंह खैरा जो 110 दिन के बाद जेल से बाहर आया है। ये जो बता रहा है वहाँ पे मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है, बिल्कुल सच है, ये सच है। वहाँ पे मेंटली टॉर्चर किया जाता है, शारीरिक टॉर्चर तो किया ही जाता है, मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है। अब आप सोच के देखो, ये तो पंजाब की जेल में थे, जिन बंदों को बाहर की जेलों में डाल रखा है, जैसे डिब्रूगढ़ डाल रखा है पंजाब के युवाओं को, और दूसरी अलग जेलों में डाल रखा है, उनके साथ क्या करते होंगे? कभी सोचा आपने? सोच के देखना इस चीज़ को, तब आपको पता लगेगा। अब करते हैं बात नोबल पुरस्कार की। सॉरी भाई, नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार अगर किसी को मिलता है तो गोदी मीडिया तांडव नृत्य करती है। आपको याद है खालसा एड के वो रवि सिंह खालसा, रवि सिंह खालसा का नाम अब की बार नोबल पुरस्कार में गया है। नोबल पुरस्कार के लिए छोटी मोटी चीज़ नहीं, नोबल पुरस्कार लेना हंसी खेल नहीं होता। ये वो जो सेवा कर रहे हैं ना, आपको पता है
असम में बाढ़ आई थी या कहीं पर भी बाढ़ आई, हड़ आई, भूकंप आया, वहीं पर खालसा एड पहुंच जाती थी, वहीं पर खालसा एड पहुंचती थी, खालसा एड पहुंचती थी, लोगों की सेवा करती थी। उस सेवा का जो अब फल मिल रहा है अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा से, नोबल पुरस्कार में नाम आया भाई रवि सिंह खालसा का। नोबल पुरस्कार 2024 के लिए रवि सिंह खालसा का नाम आया। ये बड़े मान वाली गल है, बड़े मान की बात है। ये मान होना चाहिए, पूरे भारत को मान होना चाहिए। दिखाना तो चाहिए गोदी मीडिया को लेकिन दिखाएगा नहीं। आता भी है तो अंग्रेजी अखबारों में आता, बाहर की मीडिया दिखाती है, हमारी मीडिया कभी नहीं दिखाती। कोई पंजाबी अगर अच्छा काम करता है, कोई सिंह अगर अच्छा काम करता है, कभी मीडिया नहीं दिखाएगा। मीडिया ढूंढता है। आपको पता है पंजाब के अंदर जो हिंदी के अखबार छपते हैं, आप पढ़ लेना, ये बात हम नहीं करें, जो हिंदी के अखबार छपते हैं ना, उनके अंदर भी किसी भी सिंह को सिंह और कौर नहीं लिखा जाता, किसी बहन के सामने कौर नहीं लिखा जाता। पढ़ लेना आप कभी भी, कोई भी अच्छा काम करता है उसको सिंह और कौर नहीं लिखा जाता। जथेदार साहब कोई क्या लिखा गया वो पढ़ लो आप अखबारों के अंदर ये हिंदी अखबारों की वो है, और वो तो आपको दिखाया ही था चल क्या रहा पंजाब के अंदर। तो ये बड़ी ही मंदभागी बातें हैं। आप देखो कहीं भी रहते हो, अगर आप हरियाणा में रहते हो और कोई हरियाणवी बोल रहा है और आप उसको ये कहते हो कि क्या क्या गवारों वाली भाषा इस्तेमाल कर रहा है, कहने दो, आप अपनी बोलो, अपनी माँ बोली को कभी मत छोड़ो। वो अगर लिख रहे हैं, अगर उन्होंने जथेदार साहब को भी डॉक्टर लिख के जथेदार साहब का नाम लिखा है, सिंह नहीं लिखा है, डॉक्टर फलाना सिंह लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो ये बड़ी गलत चीज़ें हैं। इन चीज़ों की तरफ ध्यान दो। जो कौम में आपको दोबारा याद दिलाना पड़ता है, जो कौम में अपना इतिहास भूल जाती है, अपनी संस्कृति भूल जाती है, अपनी बोली भूल जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। बड़े बड़े कबीले ख़त्म हो गए, क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया था, इसलिए वो बड़े बड़े कबीले ख़त्म हो गए। और पहले कबीले ही होते थे, कबीलों में एक सरदार होता था। और आप तो है ना, शुक्र मनाओ उस वाहेगुरु अकाल पुरख का, ये आपको बाबा नानक ने सभी को सरदार बनाया है। बड़े मान की बात है ये। एक सिंह क्यों 1.25 लाख के बराबर बनाया? दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वो इसलिए बनाया था कि अकेला भी 1.25 लाख के बराबर है, 1 लाख आदमियों पर कमांड करेगा अकेला सिंह, इसलिए बनाया गया था। लेकिन आप लोग क्या भूलते जा रहे हो इन चीज़ों को। भूलो मत, कभी मत भूलो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा कभी मत भूलो। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, हो जाएगी ठीक, उसके बाद आपको बताएंगे। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, अगर आपको ना पता हो तो। देखते हैं, दवाई गोली लेंगे हो जाएंगे ठीक। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। ठंड है, सर्दी है, लगती है सर्दी गर्मी, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती रहती है। ठंड आती है आ जाती है, उस समय पर ही थोड़ा ज़्यादा नुकसान करती है। तो अपना बचाव रखो, विशेष तौर पर अपने बच्चों का बचाव रखो, और अपने बच्चों को बताओ अपनी भाषा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में अपने बच्चों को बताओ। ये लोग इन चीज़ों को मिटाते जा रहे हैं, इतिहास को मितिहास बनाते जा रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और दोबारा से बोल रहे रवि सिंह खालसा को बहुत बहुत मुबारक हो। छोटी मोटी चीज़ नहीं भाई, नोबल पुरस्कार में नाम आया है, नोबल पुरस्कार में नाम आया है, बड़े मान वाली बात है ये। आप सबको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। रवि सिंह खालसा को और पूरी खालसा एड को मुबारक हो। आपने जो मेहनत की थी उस मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। और ये करें नोबल पुरस्कार रवि सिंह खालसा भाई को मिले, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी सेवा की ना उसके बदले नोबल पुरस्कार कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है ये। इतने बड़े लेवल पर नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। पूरे पंजाब को मुबारक हो, सभी सिंहों को बहुत बहुत मुबारक, सभी संगतों को मुबारक हो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। ये फर्ज तो अपना निभा देना। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।